Hello students of class 9th. Students, as you all know that nowadays chapter number 6 lines and angle is going on, and in this chapter few important definitions which is related to this chapter already have explained. Students, today theorem 6.1 I am going to explain firstly. After that we will start the first exercise 6.1 today. Now theorem 6.1 is that if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. In my Google Meet classes already I have explained this theorem. Again today I am going to explain. Student, if two lines are intersect each other, let two lines are AB and CD. Let these two lines intersect each other at point O. We have to prove कि vertically opposite angles equal होते हैं. Given two lines AB and CD intersect at point O. To prove, what we have to prove? Vertically opposite angles are equal. आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं, एंगल AOD इक्वल टू CO angle AOD equals to angle BOC and angle AOC is equals to angle BOD. ये प्रूफ करना है हमें. Proof of this theorem now I am going to explain. Student, as you all know that ray OA stand on a line CD as ray OA stands on line CD. So अगर ये CD के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ सिमिलरली OD स्टैंड ऑन AB. Similarly, ray OD stands on AB. Then, so angle AOD plus angle BOD also equals to 180 degree. This is our equation number 2 by the same property, linear pair से. Now compare these two equations because both the equation is equals to 180 degree. From equation 1 and 2 दोनों को इक्वेट कर दीजिए. AOD प्लस AOC, AOD प्लस AOC इक्वल्स टू AOD प्लस BOD. वी आर ऑब्जर्विंग दैट AOD दोनों साइड में आ रहा है, कैंसिल हो गया. वॉट इज रिमेनिंग नाउ? AOC इक्वल्स टू BOD. ये हमने फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ कर दिया. AOC इक्वल्स टू BOD. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट what our second part AOD equals to BOC, angle AOD equals to BOC. This is the verification of this theorem. Now exercise 6.1 I am going to explain to you. Exercise 6.1. What is the question number 1? In this exercise there is a ray. The name of this ray is AB.
line AB and CD intersect each other at O. Study the question. Lines AB and CD intersect each other at O if angle AOC plus BOE equal to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree. What we have to find? क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है हमें. तो व्हाट इज द फिगर नाउ? द नेम ऑफ दिस लाइन इज CD and there is a ray OE. The name of this point is solution of this question. As we know, angle AOC equals to angle BOD by vertically opposite angle. You will write full form of vertically opposite angle. एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD की वैल्यू गिवन है, क्या है आपको? 40 है. ये गिवन है आपको कि एज एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री. ऑल्सो व्हाट इज गिवन? एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 70. ये भी आपको गिवन है ऑलरेडी. द वैल्यू ऑफ AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री. नाउ वी कैन पुट हियर 40 डिग्री प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री. वी कैन शिफ्ट 40 ऑन राइट साइड. देन एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40. देन एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री. एंगल BOE की वैल्यू क्या आ गई है? 30 डिग्री आ गई है. अब एज वी ऑल नो दैट AOB इज़ ए लाइन. जब AOB लाइन है तो COA प्लस COB कितना होगा? 180 डिग्री होगा. एज AOB इज अ लाइन, सो एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से. बट इन दिस गिवन डायग्राम एंगल BOC COB is divided in two parts, COE plus BOE. तो इन प्लेस ऑफ COB वी कैन राइट COE प्लस BOE. लिख दीजिए यहाँ पर एंगल AOC एज इट इज प्लस क्या लिख सकते हैं? COE प्लस BOE इक्वल टू 180 डिग्री. AOC की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री, COE एज इट इज़ प्लस BOE की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी हमने 30 इक्वल्स टू 180. 40 प्लस 30 70 प्लस COE इक्वल्स टू 180 डिग्री. 70 उधर जाके शिफ्ट कर दीजिए. फाइनली COE की वैल्यू क्या आ गई है? 180 माइनस 70. तो एंगल COE इक्वल्स टू 110 डिग्री. एक तो हमें कैलकुलेट करना था BOE, एंगल BOE. एक तो ये वाला आंसर हो गया हमारा. एक हमें कैलकुलेट करना है इसमें रिफ्लेक्स ऑफ COE. तो रिफ्लेक्स एंगल COE, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल? एन एंगल विच इज मोर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्ट एंगल. तो जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो एंगल को 360 में से क्या करना होता है? माइनस. तो रिफ्लेक्स COE इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 माइनस COE की वैल्यू 110. तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 250 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इट वॉज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. The question number 2 is, now the question number 2, in this given diagram, a diagram is given, lines XY and MN intersect each other at O. XY एक लाइन है और एक लाइन है MN, M और N.
both lines are intersect each other at point O. If angle POY this angle is equals to 90 degree, then find and A ratio B. This is angle A and this is angle B. It is given in the diagram. So we have to find the value of this is angle C. What we have to find? The value of C. C की वैल्यू इस डायग्राम में फाइंड करनी है. Again listen the question. Two lines XY and MN intersect each other at O. Angle POY equals to 90 degree and A ratio B is equals to 2:3. We have to find the value of C. Now solution of this question. Students, as XOY is a line, so angle POY plus angle POX is equals to 180 degree by लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से. POY गिवन है 90 प्लस POX इक्वल्स टू 180 डिग्री. फाइनली द वैल्यू ऑफ एंगल POX कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90. द वैल्यू ऑफ एंगल POX क्या है? A प्लस बी. क्या वैल्यू आ गई A प्लस बी की? 90 आ गई है. अब एज A रेशो B कितना गिवन है आपको? 2:3. सम ऑफ रेशो कैलकुलेट कर लीजिए. सम ऑफ रेशो 2 + 3 कितना आ गया? 5. सो एंगल ए कितना आ जाएगा? एंगल ए की वैल्यू, रेशो क्या है ए का? 2. सम टोटल रेशो, सम ऑफ रेशो 5 इंटू द सम ऑफ ए प्लस बी, दोनों का सम क्या है? 90. सॉल्व कर लीजिए. 5 से 90 18 टाइम्स कैंसिल, 18 2 जा 36 डिग्री. सिमिलरली बी कैलकुलेट कर सकते हैं. बी का रेशो क्या था? 3. सम ऑफ रेशो 5, दोनों का सम 90. 5 से कैंसिल, 18 3 जा 54 डिग्री. बी की वैल्यू क्या आ गई? 54. ऑल्सो एम एंड MON इज अ लाइन. एज MON इज अ लाइन, ये एक लाइन है तो दोनों का सम क्या होगा? सो B प्लस C क्या होना चाहिए? 180 होगा. बाय विच प्रॉपर्टी? बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से. किस प्रॉपर्टी से सम क्या होगा? 180. लीनियर पेयर से. स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से दोनों का सम क्या होगा? 50 डिग्री. दी वैल्यू ऑफ B क्या कैलकुलेट की थी हमने? B की वैल्यू 54. तो यहाँ पर B की वैल्यू 54 प्लस C इक्वल्स टू 180. 54 शिफ्ट कर सकते हैं राइट साइड. C की वैल्यू 180 माइनस 54, देन द वैल्यू ऑफ C इज 126 डिग्री. This is the solution of question number 2 of this exercise. Now the question number 3 is question number 3 of this exercise. In this given diagram, a diagram is given. P Q R the name of this point is S and this is T. Given है angle PQR is equals to PRQ, means interior angles of this triangle are equal and we have to prove what we have to prove? Angle PQS is equals to PRT, that is एक्सटीरियर एंगल हमको इक्वल प्रूफ करने हैं और इंटीरियर एंगल इस ट्रायंगल के क्या है? इक्वल दे रखे हैं. तो देखिए प्रूफ. एज SRT, व्हाट इज SRT? ये क्या है? ये एक लाइन है. एज SRT इज अ लाइन. जब ये लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर से. सो एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली एंगल PRQ और PRT का सम भी क्या होगा? 180 होगा. PRQ प्लस एंगल
PRT is equals to 180 डिग्री. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बाय लीनियर पेयर से दोनों 180 के इक्वल है. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इक्वेशन से व्हाट वी कैन से दैट दोनों 180 के इक्वल है. दोनों को इक्वेट कर दीजिए. एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT. बट एंगल PQR ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है. PQR दिस एंगल इज इक्वल्स टू PRQ. जब ये इसके इक्वल है तो दोनों से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट इज लेफ्ट, PQS इज इक्वल्स टू PRT. यू कैन राइट हियर एज एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ. दोनों क्या थे, इक्वल थे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा. इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ स्टूडेंट्स, up to question number 3 you have to complete in your fair notebook. Tomorrow we will start the question number 4 of the same exercise. Up to that, thank you, have a good day.